Good morning, students, and welcome to the fourth lecture on ordinary differential equations of higher order with constant coefficients. In this lecture, we shall study about the methods of undetermined coefficients. Basically, this method is applicable to find the particular form of the solution of the given differential equation. It means आपके पास में कोई differential equation given higher order की, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बट इसे पीआई निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, देन यू कैन अप्लाई दिस स्पेशल मेथड known as the method of undetermined coefficient, and this method is applicable only to find the particular integral or particular form of the solution. So let us define the method as such. So consider the nth order non-homogeneous differential equations with constant coefficients a naught dny upon dx power n plus any equals to qx. So this is our nth order non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Here a naught, a1, a n arbitrary constants. Now here qx is either a constant, a polynomial function, exponential function, sine or cosine function, or finite sum and product of these functions. It means ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी की है. Now in this method to find the pi of the equation number 1, so as we know that the pi is the particular solution which is correspond to the qx not equal to 0. So in this method we guess yp. Here yp stand for the particular integral motivated by the function qx. It means जो आपके पास में given differential equation है उसका right hand part जो qx है उससे motivated होके हम yp की values assume करेंगे with keeping the following things in mind. No function in the assumed particular solution is the solution of the associate homogeneous differential equation. It means आपको qx के बेसिस पे आप yp assume करेंगे और yp इस तरह से assume करेंगे कि आपने जो भी assume किया है वो आपके cf पार्ट में नहीं होना चाहिए, because आपका जो no function in the assumed particular solution is the solution of the associate homogeneous differential equation. Suppose आपके पास में qx given है, qx की वैल्यू कोई e की पावर x है सपोज, तो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल e की पावर x नहीं होना चाहिए. यदि e की पावर x है सो उस केस में हम डिफरेंट अपना pi अज्यूम करेंगे. ठीक है, राइट. इफ एनी ypi कंटेन्स टर्म दैट डुप्लीकेट टर्म्स इन yc, इट मींस yc और yp के अंदर टर्म्स रिपीट हो रही हैं. yc में सपोज e की पावर x और yp में भी आपकी e की पावर x मिल रहा है आपको, तो उस केस में यदि डुप्लीकेट टर्म्स आ रहे हैं, इन दैट केस that ypi must be multiplied by some x की power n, where n is the smallest positive integer that eliminates that duplication. It means suppose qx में आपके पास e की power x प्रेजेंट है और cf आपने जब निकाला तो उसमें e की power x भी आ रहा है, तो इस केस में हम जब yp assume करेंगे तो हम क्या करेंगे, e की power x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में yp क्या बन जाएगा, x टाइम्स e की power x. और सपोज x e की power x yc में प्रेजेंट है और yp में आप x की e की पावर x प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसको अगेन x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास x स्क्वायर e की पावर x हमारा yp बन जाएगा. सो ये दो चीजें हमको माइंड में रखनी है जब भी हम yp अज्यूम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो फंक्शन इन द अज्यूम पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इफ एनी ypi कंटेन्स टर्म्स दैट डुप्लीकेट इन yc, then that ypi must be multiplied by x की पावर n, where n is the smallest positive integer that eliminates that duplication. For example, there are some standard methods to find the particular integral. Suppose qx आपके पास में constant term given है, suppose 1, so yp हम assume करेंगे कैपिटल A के बराबर, जहाँ पे a हमारे पास क्या arbitrary constant, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे by substituting yp in the given differential equation. Suppose आपके पास में qx कोई लीनियर फंक्शन है 5x plus 7. So our yp is of this form ax plus b. If your qx is of quadratic form 3x square minus 2, then your yp is of this form ax square plus bx plus c. यदि आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, then we assume ax cube plus bx square plus cx plus d. If sin 4x, it means sin trigonometric function either sin or cos की फॉर्म में, then our ypi of this form a cos 4x plus b sin 4x. cos 4x है उस केस में हमारे पास आ जाएगा a cos 4x plus b sin 4x. यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है then we assume a e की पावर 5x. यदि एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय लीनियर पॉलिनोमियल, then our yp is of this form ax plus b, because हमने लीनियर को किससे रिप्लेस किया है, यहाँ पे ax plus b से रिप्लेस किया है.
और यहाँ पे e की पावर 5x जो भी एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे हमने e की पावर 5x अज्यूम किया था, बट यहाँ पे p ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वो इसमें मर्ज हो जाएगी आपकी टर्म। सो अवर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल इज अज्यूम बाय दिस फॉर्म। यदि x square is multiplied by e की पावर 5x, it means quadratic polynomial is multiplied by exponential function, then our ypi is of this form, ax square plus bx plus c e की पावर 5x, because x square जो सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है वो हमने इस फॉर्म में अज्यूम किया ax square plus bx plus c, राइट। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय sin 4x को हमने इस फॉर्म में अज्यूम किया a cos 4x plus b sin 4x। सो हमारे पास में इसका जो पी आई बनेगा दैट इज a टाइम्स e की पावर 3x cos 4x प्लस b टाइम e की पावर 3x sin 4x। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin 4x, इट मींस x स्क्वायर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, सो देयरफॉर अवर एंड sin 4x को आप इस फॉर्म में अज्यूम करते हैं a cos 4x प्लस b sin 4x, सो देयरफॉर दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइम्स cos of 4x प्लस ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g sin 4x। x मल्टीप्लाई बाय e की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय cos 4x इस फॉर्म में है, तो x को आप लीनियर पॉलिनोमियल है, सो देयरफॉर दिस इज ax प्लस b e की पावर 3x cos 4x प्लस cx प्लस e की पावर 3x sin 4x। इट मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका जो pi होगा वो इस फॉर्म में होगा a cos 4x प्लस b sin 4x। अब इसके मल्टीप्लाई में लीनियर है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस केस में हमारे पास ये वाली फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। So these are the standard method to find the pi. So let us see the application of this method. So determine the form of the particular solution of this one. It means हमारे पास में differential equation given है with constant coefficient है, right hand part आपके पास में polynomial है, exponential function है which is multiplied by x and trigonometric function है। So first of all हम क्या निकालेंगे, इसकी auxiliary equation निकालेंगे। So इसकी auxiliary equation क्या होगी बताइए आप लोग। बिकॉज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है ऑफ सेकंड ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी बताएं बेटा। m square minus 9m plus 14 equal to 0। तो इसके रूट्स आपको क्या मिल जाएंगे 2 and 7, ठीक है। सो देयरफॉर योर yc इज c1 e की पावर 2x एंड c2 e की पावर 7x। अब आप देख पा रहे हैं कि yc के अंदर e की पावर 2x एंड e की पावर 7x है, और qx में कहीं भी आपको e की पावर 2x और e की पावर 7x नजर नहीं आ रहा है। सो इट मींस आपका yc और जो yp है वो yc पे डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे, है ना, बेसिकली बिकॉज yc में जो भी टर्म्स आ रही है वो आपके पास qx में प्रेजेंट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हम अज्यूम करेंगे yp। सो फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, एंड वी नो द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को आप किससे रिप्लेस करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। सो नाउ दिस 3x स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब sin 2x है, एंड वी नो sin को आप किससे रिप्लेस करेंगे, a cos 4x प्लस b sin 4x, यदि sin 4x प्रेजेंट है तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा 5 sin 2x क्या बन जाएगा e cos 2x प्लस f sin 2x। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय x को आप किससे रिप्लेस करेंगे ax प्लस b, इट मींस gx प्लस h e raised power 6x sorry। so this is our yp corresponding to the given differential equation। ये हमारे पास yp की फॉर्म होगी जहाँ पे a b c e f g h की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस yp इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस yp को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट मींस आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको y प्राइम मिल जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो y डबल प्राइम मिल जाएगा। इस सब की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, और आपके पास जो इक्वलिटी बन रही है उसका कंपैरिजन करेंगे, इट मींस x स्क्वायर की टर्म्स का कंपैरिजन करेंगे, sin 2x की टर्म्स का कंपैरिजन करेंगे, और x की पावर cx का टर्म्स का कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास में a b c e f g h में इक्वेशंस मिलेगी, उनको आप सॉल्व करेंगे, देन यू गेट द वैल्यूज ऑफ a b c e f g h, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट पड़ा किसी को? तो आपके पास में इस मेथड को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको CF निकालना है। CF यदि आपके पास QX किसी टर्म में प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आपका अज्यूम करना कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी फॉर्म ये बनेगी,
साइन 2x है उसकी फॉर्म आपके पास ये बनेगी, x e की पावर x है तो उसकी फॉर्म ये बनेगी। इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। जस्ट हमको देखना है कि आपका पॉलिनोमियल है तो आपको उससे रिप्लेस करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इससे रिप्लेस करना है, x मल्टीप्लाई बाई e की पावर x है तो आपको इससे रिप्लेस करना है, और सारे टर्म्स का एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास में दिस इज yp1, दिस इज yp2 एंड दिस इज yp3, बिकॉज हमारे पास में तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, x स्क्वायर sin 2x और x e की पावर x। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको हम नाम देंगे yp1, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास yp मिलेगा दैट इज yp2, और थर्ड टर्म के करस्पॉन्डिंग जो yp मिलेगा दैट इज yp3। ठीक है, so this is the method to find the particular form of the given differential equation of EI. ठीक है, let us see one more example. If y4 plus y3, it means यहाँ पे जो open bracket में जो 4 और 3 लिखे it denote the order of the differential equation. So it means this is our fourth order and this is our third order derivative equals to 1 minus x square e की power minus x. ठीक है, so determine the form of the particular integral. So first of all we find the auxiliary equation for the given differential equation. Auxiliary equation क्या बनेगी बेटा इसकी? m power 4 plus m power 3 equal to 0. 0, okay. So आपके पास में रूट्स मिलेंगे m की 0, 0, 0 एंड -1. 0 आपका रिपीटेड रूट है, 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, -1 एक डिफरेंट रूट है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग आपका CF क्या बन जाएगा, C1 plus C2x plus C3x स्क्वायर, एंड 1 के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा C4 e की पावर -x। यस और नोट? Yes, sir. ऑल राइट, नाउ अब आप देखिए, आप इसमें यहाँ पे C1 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। इट मींस हम C1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका 1 भी हो सकता है। इट मींस आपका कांस्टेंट रिपीट हो रहा है YC और YP के अंदर, QX के अंदर, सॉरी। ठीक है, आप QX से कंपैरिजन कीजिए आप इसका, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है। इट मींस ये टर्म आपकी रिपीट हो रही है। सेकंड, आपके पास में x स्क्वायर e की पावर -x है। ठीक है, ये टर्म आपकी रिपीट नहीं हो रही ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो डुप्लीकेशन आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए उसको क्या करेंगे, उसकी लोवेस्ट पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, so since e की पावर -x is present in yc, therefore we assume yph। कांस्टेंट को आप क्या अज्यूम करेंगे, a, और x स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस e टाइम्स e की पावर -x। ये हमारे पास yp की फॉर्म हो जाएगी, जहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी yp1 हो जाएगी और सेकेंड टर्म आपकी yp2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? जस्ट अभी तक हमने अज्यूम किया है ना, कंपैरिजन अभी कुछ नहीं किया, जस्ट हमारे पास जो QX गिवन है उसके बेसिस पे हमने YP अज्यूम कर लिया। कांस्टेंट है तो A अज्यूम कर लिया, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई e की पावर -x तक तो हमने x स्क्वायर प्लस CX प्लस e टाइम्स e की पावर -x कर लिया। अब आप देखिए इसमें duplication between YC and YP are eliminated when YP1 is multiplied by x cube and YP2 multiplied by x। सपोज आपके पास में ये कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे a और यहाँ पे C1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट रिपीट हो रहा है। सपोज हम इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करें, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस YP को, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, AX बन जाएगा, और यहाँ पे C2x ऑलरेडी प्रेजेंट है। इट मींस C2x भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट x स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा AX स्क्वायर, बट यहाँ पे C3x स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है। इट मींस ये भी टर्म रिपीट हो रही है। सो हमारे पास लोवेस्ट पावर x की क्या बन रही है, x क्यूब। यदि हम इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, ax क्यूब, जो यहाँ YC में प्रेजेंट नहीं है। यस और नो? Yes, sir. स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x क्या बनेगी यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए, x क्यूब, बिकॉज आप इसको यदि एस सच रखते हैं तो कांस्टेंट टर्म रिपीट हो रही है, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेकंड टर्म रिपीट हो रही है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये थर्ड टर्म रिपीट हो रही है। सो हमारे पास नेक्स्ट पावर क्या पॉसिबल है, x क्यूब है। सो वी मल्टीप्लाई दिस yp1 बाई x क्यूब फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके देन, अब आप यहाँ पे देखिए C4 e की पावर -x है, और यहाँ पे यदि आपने yp अज्यूम किया तो यहाँ e टाइम्स e की पावर -x आ रहा है। इट मींस कांस्टेंट ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है,
कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे आपने जो वाई पी एज्यूम किया वहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स प्रेजेंट है। सो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की स्मॉलेस्ट पावर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को, तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो बन जाएगी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, जो कि इस टर्म से डिफरेंट है। यस और नो? Yes, sir. So therefore Yes, sir. we multiply the second term by x. यदि यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछिए। yc और yp के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, यदि डुप्लीकेशन प्रेजेंट है तो हम उसको स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। Sir, but फिर उससे cx square भी तो बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बन जाने दीजिए। But sir, आपको फिर c3x square भी तो present है। कहाँ पे है? yc में c3x square है और नीचे यहाँ cx square बन जाएगा। दैट इज मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस x, बट यहाँ पे e की पावर माइनस x नहीं है। Yes, sir, yes. एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई ना बेटा ये। यस और नो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट मूव करें। सो आपको करना कि फर्स्ट टर्म को आपको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म को आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली आपको इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर योर वाई पी इज ऑफ दिस फॉर्म, वाई पी इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस, अब इसको आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया, देन यू गेट बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द गिवन पर्टिकुलर इंटीग्रल। यदि इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay then. So let us see the application of this method. Making use of the method of undetermined coefficient, solve the differential equation y double prime minus 2y prime minus 3y equals to 4x minus y plus 6x e की power 2x. So first of all we find the complementary function for the given differential equation. So इसके लिए आपकी auxiliary equation बन जाएगी m square minus 2m minus 3 equals to 0, which gives m equals to 3 and minus 1. So therefore CF is C1 e की पावर माइनस एक्स एंड C2 e की पावर 3x. So आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपके C1 में जो CF में जो दो वैल्यूज मिल रही हैं e की पावर माइनस एक्स और e की पावर 3x, वो QX से डिफरेंट है। इट मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेशन का कोई केस ही नहीं बन रहा हमारे पास में। सो सिंपली हमको अज्यूम करना YP पॉलिनोमियल है यहाँ पे 4x, तो इसकी जगह आप क्या अज्यूम करेंगे बेटा बताएं? 4x minus 5, दैट इज अवर फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है ना, 4x minus 5 है। तो आप इससे किससे रिप्लेस करेंगे? ax plus b. ax plus b, और यहाँ पे सेकंड है x मल्टीप्लाई बाई e की पावर 2x है, तो यहाँ पे x जो बनेगा उसको अगेन किससे रिप्लेस करेंगे? ex plus f. हाँ, ex plus f, और दिस इज मल्टीप्लाई बाई e की पावर 2x. सो देयरफॉर आवर yp इज ऑफ दिस फॉर्म है ना, ax plus b plus cx plus e की पावर 2x. एनी डाउट इन yp? आपने जो yp अज्यूम किया है यहाँ पे, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? बिकॉज ये जो फर्स्ट टू टर्म है आपके लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया ax plus b से। सेकंड है x मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2x, so therefore cx plus e की पावर 2x. Now we find the values of a, b, c and e by substituting this yp in the given differential equation. So yp आपके पास में है, अब हमको यहाँ पे y प्राइम चाहिए और y डबल प्राइम चाहिए. So we differentiate this one time and two times. So first differentiation आपका क्या बन जाएगा, y प्राइम e, that is a plus 2 times cx plus e की पावर 2x plus c की पावर 2x. यही होगा इसका डेरिवेटिव. चेक कीजिए आप लोग, इस टर्म का डेरिवेटिव ये वाली टर्म होगी या नहीं होगी? यस सर. ओके देन, अब इसी का आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए. आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ये टर्म बनेगी या नहीं बनेगी, चेक कीजिए. Yes, sir. राइट. सो इट मींस हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है. अब ये तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. पुट कीजिए आप लोग yp, y प्राइम p एंड y डबल प्राइम p, ये सारी वैल्यूज इसके लेफ्ट हैंड पार्ट में पुट कीजिए आप लोग एंड सिंप्लीफाई इट. लेफ्ट हैंड पार्ट में पुट कीजिए और बताइए क्या मिल रहा है आपको.
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका लेफ्ट हैंड पार्ट ये मिल रहा है क्या आप लोग? चेक कीजिए एक बार। -2a - 3b - 3ax + 2c - 3 e की पावर 2x - 3c x e की पावर 2x। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये मिल रही है या नहीं मिल रही? yp y'' एंड y'' को आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, सो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बन जाएगा। ओके देन नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है? नाउ वी कंपेयर बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन, x की वाली टर्म का कंपैरिजन और x e की पावर 2x वाली टर्म का कंपैरिजन। तो यहाँ पे x का जो पॉलिनोमियल है उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास में एक टर्म प्रेजेंट है, इट मींस -3a व्हिच इज इक्वल्स टू 4। कांस्टेंट हमारे पास में क्या है? -2a - 3b व्हिच इज इक्वल्स टू -5। e की पावर 2x से मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, सो देयरफॉर वी अज्यूम दिस 2c - 3 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे x e की पावर 2x वाली टर्म प्रेजेंट है, सो देयरफॉर वी अज्यूम -3 इक्वल्स टू 6। सो बोथ साइड का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशंस आपको मिलेगी। -3a इक्वल्स टू 4 इट मींस x वाली जो टर्म है यहाँ पे। सेकंड है कांस्टेंट टर्म -2a - 3b इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट हमारे पास x e की पावर 2x दैट इज -3c इक्वल्स टू 6 एंड e की पावर 2x वाले टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो देयरफॉर 2c - 3 इक्वल्स टू 0। नाउ सिंप्लीफाई दीज फोर इक्वेशंस फॉर a b c and e, then we get a equals to -4/3, b equals to 23/9, c equals to -2 and e equals to -4/3। ये सारी वैल्यूज आप जो अपने yp अज्यूम किया था उसमें पुट कर दीजिए, then you get yp equals to -4/3x plus 23/9 plus -2x -4/3 e raised power 2x. So this is our required particular integral of the given differential equation. So therefore the general solution will be yc plus yp which is equals to this relation. तो बेटा कोई डाउट इसमें? कहीं कोई डाउट हो इस प्रॉब्लम के अंदर कहीं बताइए आप लोग। आशीष? No, sir. Okay then. Let us see the next problem. Making use method of undetermined coefficient solve this differential equation. y" minus 6y' plus 9y equals to। So first of all इसकी CF की वैल्यू बताइए क्या मिलेगी आपको? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिल रहा है आपको? रूट्स क्या मिल रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल Sir, c1x plus c2x e to the power 3x complementary function. दैट इज Yes. c1 plus c2x e की पावर 3x दैट इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ अब आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ रिपीट हो रही है टर्म yc और qx के अंदर कुछ टर्म रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे। Yes, sir. कौन सी टर्म रिपीट हो रही है बेटा? c1 e to the power 3x. c1 e की पावर दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय e की पावर 3x, ये टर्म रिपीट हो रही है यहाँ पे, है ना? सो इसको डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई। इस टर्म में जो भी हम yp अज्यूम करेंगे उसका आप उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यदि आप उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में ये वाली टर्म रिपीट करेगी। यदि आप यहाँ पे उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे yp को तो आपके पास में ये वाली टर्म बन जाएगी।
Yes, sir. तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए आपके लिए? X square से multiply यस, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आप वाई पी एज्यूम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो सेकंड डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल है स्टार्टिंग की टू टर्म्स, इसके करस्पॉन्डिंग आपका वाई पी क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये बन जाएगी आपका ई एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। ये हमारा वाई पी बनेगा। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ये हमारा वाई पी बनेगा। ये वाली जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज करस्पॉन्ड टू फर्स्ट टू टर्म्स सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, एंड -12 ई की पावर 3x के रेस्पेक्ट में आपके पास में वाई पी बनेगा ई एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। किसी को कोई डाउट है इसमें? वाई पी No, sir. नो डाउट। सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी सी और ई की वैल्यूज निकालेंगे। फॉर दिस वन वी सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड वाई पी इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। सो बताइए आपकी जो लेफ्ट हैंड पार्ट बनेगा आपका, दैट इज 9ax स्क्वायर प्लस -12a प्लस 9bx प्लस 2a माइनस 6b प्लस 9c plus 2e की power 3x equals to right hand part. Now we compare each term. X square वाली term यहाँ पे 9a है, so 9a equals to 6. Constant term हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2a minus 6b plus 9c which is equals to 2. X वाली term right hand side में present नहीं है, so therefore -12a plus 9b equals to 0. e raised power 3x वाली term है, so 2e equals to -12. So after simplification we get a equals to 2/3, b equals to 8/9, c equals to 2/3 and e equals to -6. Substitute the required values in the given differential equation, yp जो आपने assume किया था। So therefore y equals to, that is the general solution given by this relation। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir. Okay then. So thank you for today. This is all about the method of undetermined coefficients.